Assalamu alaikum everyone. The topic that I am going to discuss today is cofactors and coenzymes. First of all, what are enzymes? Enzymes are actually the biological catalyst that speeds up the chemical reaction without being consumed. We usually say that enzymes are actually the globular protein, but here there is an exception. All the enzymes are actually the globular protein which are made up of one or more than one polypeptide chains, but the ribozymes are the enzymes which are consist of the RNA and are found in the ribozymes. But sometimes, now what are cofactors and coenzymes? Sometimes these enzymes, which are actually the globular proteins, do require cofactor and coenzyme for their proper functionings. Cofactors are actually the non-protein part that help the enzymes to speed up the chemical reactions. There are three main types of cofactors: the activators, the coenzymes, and the prosthetic group. First of all, what are coenzymes? Coenzymes are the derivatives of vitamins. For example, it includes ATPs, NADs, FADs, and these are the common coenzymes. These are the detachable cofactors. Now let's think. Consider an enzyme, a lock. A substrate is a key that fixes in the lock. Cofactor are oil that help the key to slide in smoothly, and coenzyme is a special kind of an attachment. कंसिडर करें कि एक ताला है और उसके साथ एक चाबी है. अब समटाइम अब वो ताला और जो चाबी उसको फंक्शन करने के लिए समटाइम हम एक ऑयल को लगाएंगे ताकि वो चाबी ताले के अंदर इजीली मूव कर सके. जो ताले को इजीली मूव करने में हेल्प करेगी वो कोफैक्टर्स हैं. वो उस ताले को ऑयलिंग प्रोवाइड करेगी ताकि वो जो चाबी है उसके अंदर स्लाइटली मूव कर सके. इसी तरह कोएंजाइम एक स्पेशल काइंड ऑफ अटैचमेंट है जो उसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा. अब हम एक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. द कोफैक्टर्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज: इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. And the organic cofactors are further divided into main types, which are coenzymes and prosthetic group. Okay, so what is the inorganic cofactors? The word inorganic indicates that there is the absence of carbon and hydrogen in such kind of molecules. These are actually the non-carbon based molecules that includes magnesium, iron and zinc. First of all, what are inorganic cofactors? Inorganic cofactors are actually the activators which are detachable and they are only attached to the enzymes when substrate get bind. These cofactors are activators. What is the function of inorganic cofactors? Oftenly they stabilize the structure of an enzymes or participate in electron transfer chain. Okay, let's consider. हम दो तरह के रिएक्शंस की बात करते हैं जब भी हम साइक्लिक रिएक्शंस और फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं. तो उसके अंदर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दो तरह के रिएक्शंस हैं. अब उन रिएक्शंस में कुछ किस्म के एंजाइम्स हैं जिसे हम प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन कहते हैं. अब ये वो एंजाइम हैं जो कि उस पूरे साइकिल को प्रॉपर कंटिन्यू करने में हेल्प आउट करेंगे. कंसिडर करो एक फोटो सिस्टम 2 है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर गया है. अब उसको अपना एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उस ही इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 2 पे जाना है ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाए. अब फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन कुछ एंजाइम्स लेके जाएंगे. उस एंजाइम्स में प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है विच इज़ B6F. Plastoquinone is a iron containing protein. Plastocyanin is a copper containing protein. Enzymes. अब इस तरह से हमें वाज़ह होता है कि जो कॉपर, आयरन एंड जिंक हैं ये सारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं और ये उस साइकिल को कंटिन्यू करने में हेल्प आउट कर रहे हैं. इस तरह से हम इन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं. Now let's think that these cofactors can readily accept and donate the electron due to their unique chemical properties. As I have mentioned before कि ये enzymes अपने इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजेंगे, फिर उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे। ये डोनेट भी करते हैं, ये एक्सेप्ट भी करते हैं। फोटो सिस्टम 2 ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, फोटो सिस्टम 1 ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स थे। ओके, so what are the organic cofactors? The word organic indicates that there is the presence of carbon in such kind of a molecules. Except of the metal ion, the organic cofactors are carbon as a central element and are more complex in structure. Okay, consider करते हैं कार्बन को। हम ये बात जानते हैं कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स आज मौजूद हैं उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो भी केमिकल यूज़ किया जाता है उसे हम कार्बन कहते हैं। कार्बन हर एक एलिमेंट में मौजूद है और कार्बन कंटेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ह्यूज अमाउंट में है कंपैरेटिव टू द अदर एलिमेंट्स दोज आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। सो नाउ व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स? दीज आर कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट आर कोएंजाइम्स? Coenzymes are actually the derivatives of vitamin. For example, they are ATPs, NAD positive, FAD positives. Like the inorganic cofactors, these enzymes are oftenly detachable cofactors. What are the vitamin B derivatives? The nicotinamide dinucleotide Na positive, nicotinamide dinucleotide phosphate NADP positive, coenzymes and biotin, these are actually the vitamin B derivatives. Now let's discuss about the prosthetic group. Prosthetic group comparative to the activators and coenzyme, prosthetic group बिल्कुल different है। कैसे? Prosthetic group एक covalently bounded molecule है जो कि permanently attach होता है किसी भी enzyme के साथ, इसको हम detach नहीं कर सकते। Consider करो एक क्लोरोप्लास्ट को, उसके पास मौजूद है एक आयरन रिंग, उसकी पोरफायरिन रिंग में जो वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है पोरफायरिन रिंग में, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अच्छा, अब आप कहते हो कि आयरन एक्चुअली में इनऑर्गेनिक है, लेकिन ये याद रखो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो आयरन बीच में मौजूद है वो एक्चुअली डिटैच नहीं हो सकता। अब वो जो आयरन प्रोस्थेटिक ग्रुप के बीच में मौजूद है उसने 4 रिंग्स को बाउंड किया हुआ है और उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है, इसीलिए हम उस आयरन रिंग को डिटैच नहीं कर सकते। अब यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप और इनऑर्गेनिक मेटल्स में डिफरेंस ये हुआ कि उनको डिटैच किया जा सकता है लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप को डिटैच नहीं कर सकते, वो कोवलेंटली बाउंडेड होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। उसके अलावा अगर हम मिसाल लेते हैं तो वो है हीम ग्रुप, इन साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पोरफायरिन रिंग की हमने बात कर ली। हीमोग्लोबिन के मिड पॉइंट में आयरन मौजूद होती है, मैग्नीशियम और आयरन मौजूद होती हैं, ये भी अब आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका फंक्शन है कि इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। अब एंजाइम्स को कंपेयर, अब हम एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। एंजाइम 2 तरह के, एक सिंपल है, एक कम्प्लेक्स है। आपने 2 लफ्ज़ सुने होंगे, एपो एंजाइम्स एंड हॉलो एंजाइम्स। अब जो हॉलो एंजाइम्स है उसमें ये कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स मौजूद हैं। कोफैक्टर के पार्ट कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो एपो एंजाइम्स है उसके अंदर यही कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो गया। तो इसी तरह से इस बेस पे एंजाइम को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आर द कम्प्लेक्स और हॉलो एंजाइम एंड द सेकंड वन आर एक्चुअली द सिंपल एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स में एपो एंजाइम्स आते हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है। ओके, तो कोफैक्टर 2 तरह के हैं, एक में प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक में कोएंजाइम्स हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं बट ये टाइटली बाउंडेड हैं। कोएंजाइम लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं एंड दीज आर लूजली बाउंडेड। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्टिवेटर्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप में फ़र्क ये है कि दोनों हैं तो इनऑर्गेनिक, लेकिन ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ परमानेंटली बाउंडेड हैं। अब उस बेस पर ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये टाइटली बाउंडेड है एपो एंजाइम्स के साथ, और ये सिंपल स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स? कोएंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी व्हाइल द कोफैक्टर इज नॉट। ओके, कंसिडर करो कोएंजाइम्स में आपके पास ATPs NADs हैं। वो जो ATPs और NADs हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे।
आपके बॉडी को जो चीज़ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो एटीपीज है। आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद साइक्लिक रिएक्शन में जो भी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो एटीपीज एनएडीज हैं। आपके रिस्पायरेशन में, ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस में, ये जितने भी अगले सारे क्रेब्स साइकिल हैं उसमें जो चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो एटीपीज और एनएडीज हैं। अब कोफैक्टर का और कोएंजाइम का फ़र्क क्या है? कोएंजाइम की जब हम बात करते हैं तो वो वर्ड उस चीज़ से बाउंडेड है कि जहाँ पर एटीपीज और एनएडीज की बात हो रही है, लेकिन जो कोफैक्टर्स हैं उसमें एक्टिवेटर्स भी हैं, कोएंजाइम्स भी हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हैं। इसका ये मतलब है कि वो जो एक्टिवेटर्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में हेल्प कर रही है। तो इस पॉइंट का ये मतलब हुआ ऑल द कोएंजाइम्स आर कोफैक्टर बट ऑल द कोफैक्टर्स आर नॉट कोएंजाइम। फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि कोफैक्टर फॉर द 3 टाइप्स में, इसीलिए आप लोग जब भी कोफैक्टर की बात करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कोएंजाइम्स नहीं है, बल्कि वो एक्टिवेटर भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है। लेकिन सारे कोएंजाइम्स कोफैक्टर है, क्योंकि हम एक बाउंडेड हैं एक बात पे कि कोएंजाइम जो है वो कोफैक्टर की टाइप है। अ कोफैक्टर फैसिलिटेट द एंजाइमेटिक रिएक्शन बट इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, कोफैक्टर नहीं रिक्वायर्ड है। कोफैक्टर में आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को एंजाइम्स कर रहा है, लेकिन वो प्रॉपरली आप उससे बाउंड नहीं है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। समटाइम आप बात करते हो कोफैक्टर में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है, समटाइम वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र जो हो रही है वो एंजाइम्स नहीं कर रहे हैं। आपका इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र कंसिडर करो वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन की तरफ जाते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ पर ब्रेक डाउन करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, लेकिन वो कोफैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर ये वो बात आ गई। अ कोएंजाइम बाइंड टू अ कोफैक्टर व्हाइल द कोफैक्टर जनरली बाइंड एलोस्टेरिकली, चेंज करता है द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट। ये तो हमें पता है कि कोफैक्टर जो होता है वो भी कोएंजाइम हमेशा बाइंड करेगा और कोफैक्टर जो है वो उस स्ट्रक्चर की साइट को चेंज करेगा। आप एक कंसिडर करो, मिसाल के तौर पे एक इथाइल अल्कोहल है, वो ट्रांसफर हो रहा है एसिटाल्डिहाइड और NADH2 पॉजिटिव में। अब इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और NAD पॉजिटिव है। ये आपके पास वो कोएंजाइम है जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, बट वो जो दूसरा कोफैक्टर है वो एलोस्टेरिकली बाइंड करेगा। अच्छा, अब अगर हम एग्जांपल ऑफ कोफैक्टर्स की बात करें तो जो कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट साइटोसोल के अंदर है और एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ये सारे आपके पास कोफैक्टर की एग्जांपल्स हैं। इनमें किस 3 तरह के, अब आपको एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी जो रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल हो माइटोकॉन्ड्रिया में रहा है, उसके अंदर जो एसिटाइल कोए है वो कोफैक्टर है। पायरोवेट साइटोसोल के अंदर, अब आप मिसाल लेते हो ग्लाइकोलिसिस की, ग्लाइकोलिसिस आपका जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म की साइटोसोल में हो रहा है। वो जो पायरोवेट की कन्वर्जन एसिटाइल कोए में हो रही है, ये एक्चुअली में कोफैक्टर्स हैं। अब इस टाइम पे आपको 3 तरह के मॉलिक्यूल आपको एंजाइम्स चाहिए होते हैं, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोलिपॉयल ट्रांस एसिटाइलेज एंड ड्राई हाइड्रोलिपॉयल डिहाइड्रोजिनेज। ये वो रिएक्शंस हैं जो कि आपको ग्लाइकोलिसिस में साइटोसोल में चाहिए हैं, तभी वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने एक बात पढ़ी, हमने कहा कि जो पायरोवेट है वो क्रेब्स साइकिल में नहीं डायरेक्ट जाएगा, पायरोवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है एसिटाइल कोए में, तभी वो क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू करता है, जहां पर वो कोफैक्टर रिक्वायर्ड है जो इस पायरोवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एंजाइम्स। Okay, what are the organic non-vitamins cofactor? Several cofactors are organic components and they are not considered enzymes. They may be produced by our body and are not considered vitamin. ATP organic है, non-vitamin cofactor जितने भी हैं उसमें आपके पास वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन या फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करें। आप कंसिडर करो कोएंजाइम Q को, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट चेन में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अलावा जो हमारे ब्लड सेल जिनको हीम पोर्शन रिक्वायर्ड है आयरन कंटेनिंग, ये उसमें भी रिक्वायर्ड है, बट ये नॉन विटामिन है। कोएंजाइम्स जितने भी आप लोगों ने पढ़े, कोएंजाइम Q, ये वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो कि
हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, बट ये सारे नॉन विटामिन है, विच मीन देयर आर ऑल्सो सम ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच आर नॉन विटामिन्स। हम पहले बात कर चुके हैं कि कोफैक्टर्स विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक्सेप्शन भी आ जाती है कि दीज कैन ऑल्सो बी द नॉन विटामिन कोफैक्टर्स। दैट्स ऑल अबाउट द कोफैक्टर्स and coenzymes. I hope you guys get my point. Thank you very much.